orbitals. May the question will be asked in your university examination. Derive the wave function for the sp hybrid orbitals. You know that if you consider the example of BH2, is consider here example BH2. In how many hybrid orbitals are formed? Is the two hybrid orbitals are one is the psi sp1. One indicate that first number hybrid orbital is equal to a1 2s plus b1 2pz atomic orbital. Second, psi sp2, that is second hybrid orbital, is equal to a2 2s plus b2 2pz atomic orbitals. You take here, you see, may you take 2px or 2py or 2pz, but you must be remember you take that is the one of the p atomic orbital. Okay, because here yes, our atomic orbital is symmetrically shape. I here taken pz atomic orbital because it is supposed to be for the calculation point of view. If you take the px or if you take the py, no, there is a issue. But you must be remember here that if you take the px, py or pz, then here you write the coefficient is the b1 and the b2. Okay. Then this is the equation number 1. Since the s orbital is equally distributed between the two hybrid orbitals, therefore a1 square is equal to a2 square is equal to half. Therefore a1 is equal to a2 is equal to 1 by root 2. This is the equation number 2. First, here, first hybrid orbital is a normalized. sp1 is normalized. Therefore, integration of psi square sp1 is equal to that integration of a1 2s plus b1 2
pj square d tau. And here, if you solve it, then what you will get? If you solve it, yes, this is equal to, this one is a square, that is the a1 square, then this is the 2s also square, yes, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, दिस इज द b1 square 2pz square plus 2a1 b1, yes or no, into 2s into 2p, yes or no, Yes, d sir. Yes, sir. तो Yes, sir. इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन, यहाँ इसको इंटीग्रेशन डालता हूँ, तो आप देखिए, तो इसमें से जो कॉमन चीजें है वो मैं बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे a1 कोएफिशिएंट है, b1 कोएफिशिएंट है, a1 एंड b1 इज कोएफिशिएंट, जो कांस्टेंट है वो मैं बाहर निकालता हूँ। ये क्या रहेगा, a1 स्क्वायर 2s स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 2pz स्क्वायर प्लस 2a1 b1 2s 2p d तो is equal to 1। यस, तो इसका आपने इंटीग्रेशन ले लिया, ये जो है इसका वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक चीज, ये डी टो रहेगा, इसका भी मैं लिखता हूँ डी टो, तो यहाँ पे है। हाँ, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, डी टो यहाँ पे है। हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा और इसका क्या रहेगा, बोलो। तो इसका इंटीग्रेशन 1 रहेगा, इसका 1 रहेगा, और इसका जो वैल्यू है वो 0 रहेगा। तो आई राइट हियर a1 स्क्वायर into 1 plus b1 square into 1 plus 2a1 b1 into 0। तो ये आंसर क्या रहेगा, ये तो 0 पूरा टर्म आ जाएगा, तो a1 स्क्वायर 1, और 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर is equal to 1, that is a is equal to, it is a psi square sp1। Hello, we know that a1 is equal to 1 by root 2। यस, यहाँ पे देखिए, ये है ना, a1 is equal to 1 by root 2, बराबर है। Yes, तो sir. b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, सपोज दिस इज द इक्वेशन, हम लोग के लिए थर्ड इक्वेशन है।
Substituting value of the A1 in the equation number 3. बराबर है? हेलो, Yes, sir. from equation 3. Yes, I write here 1 root 2 plus b1 square is equal to 1. बराबर है? This is the equation number 4. If you solve it, then ये क्या रहेगा? b1 square is equal to 1 minus root 2. बराबर है? तो ये आंसर क्या आ जाएगा? b1 is equal to 1 by root 2. This is the equation number 5. तो आपको देखिए a1 का वैल्यू मिल गया, b1 का वैल्यू मिल गया. अभी हम लोग के लिए a2 एंड b2 का वैल्यू निकालने का है. And next, since psi sp1 and psi sp, that is the two second hybrids, are orthogonal, then we have a1 into a2 plus b1 into b2 is equal to 0. This is the equation number 6. Substituting the values of a1, a2 and b1 in equation 6, we get a1 का वैल्यू कितना है? बोलिए. 1 by root 2. बराबर या नहीं? Yes, sir. आप देखिए ना, ये a1 का वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखिए a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1 by root 2. तो मैं वही वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. a1 is equal to 1 by root 2 plus a2 is equal to 1 by root 2 plus b1 is equal to how much value? That is 1 by root 2 into b2 is equal to 0. बराबर है? सर तो वो इंटू है ना बीच में. हाँ, इंटू है ना ये. हाँ. ये इसमें इंटू है और ये प्लस है. बराबर है? अभी ये इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा? 1 root 2 into 1 root 2, 1 by root 2 into 1 by root 2. हाँ, 1 by 2. 1 by 2 आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस 1 by 2 plus 1 root 2 into b2 is equal to 0. ठीक है, ये मुझे b2 निकालने का है. तो ये क्या रहेगा? 1 root 2 into b2 is equal to minus half. ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 1 by root 2. करेक्ट? ये और नो? अरे बराबर है या नहीं? ये मल्टीप्लाई है ना, ये बाजू में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना. Yes, sir. तो b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? वो रहेगा माइनस 1 by 1 upon root 2. बराबर है? ये इक्वेशन रहेगा 7. अभी आप देखिए a1 का वैल्यू मिल गया, a2 का वैल्यू मिल गया,
B1 का वैल्यू मिल गया है और B2 का वैल्यू मिल गया है, तो खाली क्या करने का है, डिराइव करने का है। Hence, substituting the values of A1, B1, A2 and B2 in equation 1, we get hybrid orbitals wave function. Yes, hybrid orbital wave functions क्या रहेगा, वो मैंने लिखा था psi sp1 बराबर है ना। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूं तो आपको मालूम हो जाएगा। psi sp1 इज इक्वल टू a1 बराबर है 2s प्लस b1 2pz, और दूसरा क्या लिखा था, psi sp2 इज इक्वल टू a2 2s प्लस b2 2pz बराबर है। अभी मुझे क्या करने का है, a1 b1 a2 एंड b2 का वैल्यू यहाँ पे सबमिट करने का है। तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, psi sp1 इज इक्वल टू a1 का वैल्यू कितना है 1/√2 1/√2 2s प्लस b1 का वैल्यू कितना है 1/√2 2pz बराबर है psi sp2 इज इक्वल टू a2 का वैल्यू भी कितना है 1/√2 1/√2 2s बराबर है। प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस माइनस आएगा, माइनस आएगा बराबर है। वो माइनस हम लोग यहाँ पे रखेंगे, माइनस ये रहेगा 1/√2 2pz। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8, and this is equation number 8 is a hybrid orbital wave functions of sp hybridization। तो ठीक है, ये मैं रिमूव करता हूँ आपके, ये मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। अभी ये जो आपने इक्वेशन डिराइव कर दिया है वेव फंक्शन, इज अ करेक्ट और रॉन्ग, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। यस, कभी कभी ये इक्वेशन जो है ना, हेलो हेलो, यस सर ये इक्वेशन जो है थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिखते हैं कभी कभी। ये इक्वेशन ऐसे देते हैं psi sp1 इज इक्वल टू 1/√2, ये ब्रैकेट में रहेगा 2s प्लस 2pz ब्रैकेट कंप्लीट रहेगा, और psi sp2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1/√2, ये ब्रैकेट में रहेगा 2s माइनस ये रहेगा 2pz, ये ब्रैकेट कंप्लीट रहेगा। ऐसा भी दिया जाता है, ठीक है। So, what kinds of the questions will be asked in NET or SET examination or PET examination? Or is it correct? This, that is the wave functions are correct for the SP hybridization? Yes or no? तो वो आपको आइडेंटिफाई करने का है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हेलो हेलो, यस सर यस नीलेश जी, और कोई भी बोल दीजिए, हाउ यू कैन
identify this wave function for sp hybrid orbital is correct or not. How we identify it? And the question asked in NET or set examination or the PET examination on this equation. The different equations are given here for the wave function, and you will be identify which equation wave function equation is for sp hybrid addition or sp2 or sp3. तो यहाँ पे देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है. फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम लोग जाएंगे तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 2s एटॉमिक ऑर्बिटल का 1/√2. 1/√2. इसका कोएफिशिएंट क्या है 2pz या 2px एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग ने कंसीडर किया तो उसका कोएफिशिएंट क्या है 1/√2. 1/√2. ठीक है. तो आप देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन क्या है, उसका जो कोएफिशिएंट है उसका हम लोग ने स्क्वायर करके सम कर दिया तो वो 1 आना चाहिए. तो आप देखिए ये है 1/√2 का स्क्वायर कर दिया बराबर है प्लस 1/√2 का स्क्वायर कर दिया तो ये हमेशा 1 आना चाहिए. तो 1/√2 स्क्वायर कितना रहेगा हाफ रहेगा. 1/√2 का स्क्वायर कितना रहेगा हाफ. that becomes equal to 1. इसका मतलब है this is the this equation. Yes, sir. अभी Yes, देखिए sir. नेक्स्ट में जाएंगे. ये आप देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है और इसका कोएफिशिएंट क्या है. तो ठीक है वो a2 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर प्लस b2 का वैल्यू ध्यान पे रखने का यहाँ पे b2 का वैल्यू जो आया है b2 का वो माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस ½ √2 स्क्वायर. तो आप ये कितना हो जाएगा 2 और माइनस चीजों का आपने स्क्वायर कर दिया वो भी प्लस रहता है ध्यान पे रखने का बराबर या नहीं. Yes, sir. अरे माइनस 1/√2 इंटू माइनस 1/√2 ये माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस रहेगा ना. Yes, sir. या तो ये प्लस हो गया हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1. तो ये भी बराबर है. ध्यान पे आ गए हैं. Yes, sir. तो आपको वेव फंक्शन दिया जाता है नेट और सेट पेपर में और फ्रॉम दैट वेव फंक्शन दैट इज एप्लीकेबल. यहाँ पे कभी कभी ये एसपी दिया है ना इसके वजह से आपको साई दिया जाएगा psi1 एंड यहाँ पे सॉरी phi1 एंड phi2 दिया जाएगा और आप बोलेंगे अरे ये किसको अप्लाई करेंगे. तो ध्यान पे रखने का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर का हम लोग ने सम कर दिया और वो 1 आ गया. तो ध्यान पे रखने का वो अभी देखिए दो ही यहाँ पे दो ही कोएफिशिएंट है बराबर है. उसमें 3 रहेगा तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेगा तो 3 रहेगा. 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेगा तो 4 कोएफिशिएंट रहेगा. लेकिन सब कोएफिशिएंट का आपने स्क्वायर कर दिया और उसका सम कर दिया तो 1 आ गया. तो ध्यान पे रखने का 4 कोएफिशिएंट है 4 कोएफिशिएंट का हम लोग ने स्क्वायर कर दिया उसका सम कर दिया वो 1 आ गया तो बोलने का sp3 हाइब्रिड एडिशन है. और 3 कोएफिशिएंट है 3 कोएफिशिएंट का हम लोग ने स्क्वायर कर दिया और उसका सम कर दिया स्क्वायर का और वो 1 आ गया तो बोलने का उसमें sp2 हाइब्रिड एडिशन है. दैट वेव फंक्शन फॉर द sp2. ठीक है